Good morning, friends. Hope you are all fine. So, friends, you know that we have started with the second chapter, right? And we have learned some of the important concept of this chapter. So, let's have a short revision and then we can continue with the topic, right? So, let's see. Hope you are doing your work in a better way. So, friends, we have started with the chapter number 2, and the topic was business service part 1. And I already mentioned to you, we have learned the first chapter, that is the form and the purpose of business. Now, today we are going to learn the business service part 1. And most of the part we have learned it, right? The better part that we have learned the topic. So, friends, the topic is business service part 1. Now, already I discussed with you, service means the helping services, that is the auxiliary services like banking, insurance, warehousing, right? In that, we have started, friends, with the topic of insurance. Insurance. You remember the definition? Insurance definition? No? This one. Insurance refers to the return contract. Insurance refers to the return contract or agreement between two parties through which the insurer pays the premium and against he gets the undertaking through which the insurer pays the premium and he gets the undertaking from the insurer that he will be compensated as per the risk covered, and the amount decided for financial loss. And then we have learned, friends, principle में हमने सबसे पहले देखा principle of utmost good faith. Both the parties should reveal every information. No party can conceal any information. कोई पार्टी छुपा नहीं सकती. दोनों पार्टी को अपने सारे इंफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट में बताने पड़ेंगे. याद है मैंने एग्जांपल दिया था डायबिटीज एंड ऑल. ठीक है, अगर वो छुपाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है. फिर हमने पढ़ा था फ्रेंड प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल. दिस प्रिंसिपल इज रियली एप्लीकेबल टू द इंश्योरेंस. याद है हमने क्या पढ़ा था इसमें? 5 lakhs का गुड से इफ ए पर्सन टेक्स अ 5 lakh इंश्योरेंस, ही इज available with the compensation of 5 lakhs if there is a total loss. दूसरा हमने पढ़ा था 5 lakhs का इंश्योरेंस, but he has taken the insurance for 3 lakhs only. Even if there is a total loss, he will get the 3 lakhs. फिर हमने पढ़ा था proportionate loss के बारे में. He has taken the insurance of 3 lakhs, right? But he had the goods proportionate के हिसाब से 2 lakhs का goods destroy हुआ. According to that, he gets 1,20,000. Clear? फिर हमने पढ़ा था थर्ड, जो सबसे शॉर्ट था, सबसे इजी था, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट. तो उसमें क्या था? The insuree must have financial interest. Insuree must have financial interest in the product insured. Means is the way, must have the financial interest. Principle of subrogation. When a policy is taken for an insurable interest and if it is fully damaged, when the policy is taken from the insurance and is fully damaged, the insurance company pays the compensation. Insurance company compensation दे देगी, लेकिन the ownership of the remaining product will be taken by the insurance company. याद है? Yes. फिर हमने पढ़ा था फ्रेंड्स टाइप ऑफ इंश्योरेंस. तो होल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में हमने पढ़ा था. होल लाइफ इंश्योरेंस में क्या पढ़ा था? होल लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द इंश्योरी पेज अ प्रीमियम फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम and after that the insurer gives a specified amount to the insuree. In case of death it will be given to the legal heir. अगर मर जाते हैं तो उसके वारिस को मिलेगा, नहीं तो उसी को ही मिलेगा, लेकिन वो टाइम पीरियड खत्म होने के बाद. चलो तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स. अब यहां से पढ़ना है एंडोमेंट इंश्योरेंस क्या होता है. तो मैंने आपसे ये बोला था एंडोमेंट इंश्योरेंस एक स्कीम ही होता है, जिस तरह से सेविंग जैसे. एंडोमेंट इंश्योरेंस. सो लेट्स सी. When the insurance company promises to pay the policy amount
to the insuree at the end of the policy period to him, जब पीरियड खत्म हो जाता है, और टू द लीगल हेयर इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ, अगर डेथ होता है, अगर डेथ होता है तो उसके वारिस को मिलेगा, नहीं तो उसका जो टाइम पीरियड खत्म होता है तब. It is known as endowment insurance. So what is endowment insurance? When the insurance company promises to pay a policy amount to the insuree at the end of the policy period. क्या लिखा है? At the end of the policy period to him or to the legal heir in the event of his death. It is known as endowment insurance. In return, उसके बदले में the insuree pays a pre-decided amount as a premium till the duration of the policy. Near about same ही होता है. चलो, तो हम आगे बढ़ते हैं. हाईलाइट कर लेता हूं मैं आपके लिए. सॉरी. When the insurance company, क्या हो रहा है आज? चलो, when the insurance company promises to pay the policy amount to the insuree at the end of the policy period to him or to the legal heir, it is known as endowment insurance. अब आगे है जनरल इंश्योरेंस. जनरल इंश्योरेंस का मतलब होता है जो लाइफ इंश्योरेंस के अलावा, लाइफ इंश्योरेंस के अलावा, जैसे कि जनरल इंश्योरेंस में देखो एग्जाम में आ सकता है, स्टेट द टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस. कितने टाइप्स होते हैं? देखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस. एक तो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स के लिए, एक है फायर, आग के लिए, और तीसरा है अदर फॉर्म्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस. अदर फॉर्म्स, अब देखो क्या होते हैं, जो सिंगर्स होते हैं ना, वो अपने वॉइस के इंश्योरेंस लेते हैं. पता है आपको, जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं वो अपने बालों के भी इंश्योरेंस लेते हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है. तो इंश्योरेंस आप किसी का भी ले सकते हो, किसी चीज का भी ले सकते हो, लेकिन वो चीज नहीं होने से आपको नुकसान होना चाहिए, जो होने से आपको फायदा देगा उसका आप इंश्योरेंस ले सकते हो. देखो, गुड ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस क्या लिखा है? When the goods are transported from one place to the other place, है ना, सही बात है. जब कोई सामान एक जगह से दूसरे जगह जाता है, when the goods are transported from one place to the other place, there is a risk, हमेशा रहता है, there is a risk of full or partial loss. पूरी तरीके से लॉस भी हो सकता है या थोड़ा भी लॉस हो सकता है, that we don't know. There is the risk of full or partial loss or damage. There are insurance policy है for such risk, which are known as marine insurance, air insurance and rail and road insurance. तो क्या लिखा है? When the goods are transported from one place to the other, there is always a risk of full or partial damage, है ना. When the goods are transported from one place to the other place, there is always a risk, there is always a risk of full or partial damage. So these are insurance policy for such risk. कौन से? मैराइन इंश्योरेंस ले सकते हैं हम. मैराइन मतलब जो समुद्र के रास्ते जो सामान आता है. एयर इंश्योरेंस ले सकते हैं जो हवाई जहाज से आता है. तीसरा है रेल रोड इंश्योरेंस. आगे बढ़ते हैं. फिर है मैराइन इंश्योरेंस, किसे कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स थ्रू सी. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स थ्रू सी इज वेरी इकोनॉमिकल. बहुत ज्यादा गुड्स आ जाता है तो उसके जो कॉस्टिंग होता है ना, बहुत कम हो जाता है. बट इट इज वेरी रिस्की, क्योंकि हम जानते हैं कि समुद्र के रास्ते आते हैं तो बहुत रिस्की होता है. वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द वेदर कंडीशन, पता नहीं होता. इन द 18th century मतलब 1800 to 1900 के बीच में, most of the international trade used to take place via sea route. 1800 से 1900 तक के अंदर जितने भी ट्रेड होते थे, ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड जो होते थे वो किसके होते थे? सी रूट के हिसाब से ही चलते थे. Hence it is very ancient, बहुत पुराना है, and widely used form of insurance. सबसे पुराना, ancient and widely मतलब बहुत ज्यादा यूज होता था. और नाम है लॉयड्स ऑफ लंदन. लॉयड्स ऑफ लंदन के नाम से मशहूर है. Was the first to start marine insurance. This company has maintained the image of loyalty
फॉर मोर देन 325 ईयर्स। देखो 325 साल से ये कंपनी चल रही है। इट्स अनइमेजिनेबल, राइट? वेरी गुड। तो क्या क्या पढ़ा हमने? पहले तो मैंने आज आपको सिखाया एंडोमेंट इंश्योरेंस क्या होता है। जब इंश्योरेंस कंपनी प्रोमिसेस टू पे अ सर्टेन अमाउंट एट द कंप्लीशन ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड और एट द टाइम ऑफ द डेथ टू दिस लीगल है, और उसके लिए उसको प्रीमियम रेगुलरली पे करना पड़ता है। फिर हमने पढ़ा जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस के 3 टाइप्स हैं। गुड ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस, गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस है, और मैराइन अदर फॉर्म्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस। तो पहले ट्रांसपोर्टेशन मैराइन इंश्योरेंस के बारे में। तो मैराइन इंश्योरेंस में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स आर टेकिंग प्लेस थ्रू सी रूट विच इज वेरी वेरी इकोनॉमिकल, बट द प्रॉब्लम इज वेरी रिस्की एंड स्लो, बहुत टाइम लगता है। In the 18th century, the most of the international trade is taken through with the help of sea route only. Hence, it is very ancient and widely used. And Lloyd's of London was the first. Lloyd's of London was the first to start the marine insurance. And this company has maintained the loyalty for more than 325 years. बराबर। आगे चलते हैं तो एयर इंश्योरेंस क्या लिखा है? विद द एडवेंट ऑफ 19th सेंचुरी, यानी जैसे जैसे 19th सेंचुरी पास आने लगा, दैट इज 1900 टू 2000, 1900 टू 2000, बराबर, द मूवमेंट ऑफ गुड्स थ्रू एयर कमेंस्ड। अभी ज्यादातर सामान एयर से आता है, जो ज्यादा क्या बोलते हैं बल्कि होता है, जिसका वेट ज्यादा होता है, बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, वो सब तो बाय सी रूट ही आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो मेडिकल्स इक्विपमेंट हुआ, जो थोड़े हल्के होते हैं, वो हम सी रूट से ला सकते हैं, सॉरी एयर रूट से ला सकते हैं। यस, विद द एडवेंट ऑफ 19th सेंचुरी द मूवमेंट ऑफ गुड्स थ्रू एयर कमेंस्ड। क्या लिखा है? द मूवमेंट ऑफ गुड्स थ्रू एयर कमेंस्ड, शुरू हो गया काम। Which has also led to the beginning of air insurance. अब एयर इंश्योरेंस से सामान आएगा तो प्रॉब्लम तो आएगा ही। बिगिनिंग ऑफ एयर इंश्योरेंस, एयर इंश्योरेंस में इंश्योरेंस तो लेना ही पड़ेगा। एयर ट्रांसपोर्टेशन इज टू कॉस्टली एंड रिस्की। देखो एयर ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, बहुत महंगा। अब जानते हैं ना, कहीं बाहर जाना हो, टिकट लेना हो तो बहुत महंगा है, और रिस्की भी है क्योंकि ये तो हवा के ऊपर उड़ता है, कभी भी एक्सीडेंट्स होने के चांसेस। हेंस हाईली वैल्यूबल। तो किस किस को ले जाते हैं? हाईली वैल्यूबल, जैसे कि गोल्ड है, डायमंड है, तो सबसे बेटर रहता है कि मेडिसिन से, वो सब कैसे रहता है? एयर इंश्योरेंस। हाईली वैल्यूबल एंड लाइट वेट गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय एयर। लाइट वेट गुड्स हम कैसे करते हैं? ट्रांसपोर्ट कराते हैं। द प्रीमियम फॉर एयर इंश्योरेंस, ऑब्वियसली जो प्रीमियम, रिस्क भी ज्यादा है, प्रीमियम फॉर एयर इंश्योरेंस इज मच हायर, बहुत ज्यादा है, देन मैराइन एंड रेल रोड इंश्योरेंस। रेल रोड इंश्योरेंस से और मैराइन इंश्योरेंस से बहुत ज्यादा आता है। तो क्या क्या पढ़ा हमने? मैराइन इंश्योरेंस क्या लिखेंगे? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स थ्रू सी रूट। क्या लिखा है फ्रेंड्स? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स थ्रू सी रूट इज वेरी इकोनॉमिकल, but it's very risky and very slow. 18th century it has been, most of the transportation is done with the help of international trade through sea route, right? Hence it is very essential and widely used form of insurance. Lloyd's of London was the first to start the marine insurance. This company has maintained the image of loyalty for more than 325 years. Air insurance. With the advent of 19th century, the movement of the goods through air commenced. It has also led to the beginning of air insurance. Air transportation is too costly and risky, hence highly valuable and lightweight goods, ज़्यादा valuable वाले और lightweight goods are transported by the air. The premium of air insurance obviously is much higher than the marine and road insurance. फिर चलते हैं रेल एंड रोड, जो चीज ट्रेन में आती है और ट्रक से आता है। रेल एंड रोड इंश्योरेंस। land transits involves rail and road transits of goods, बराबर। The most important form of risk involved in such transits are, क्या क्या होता है? थेफ्ट होता है ना, ट्रेन से भी हो या रोड से भी हो, थेफ्ट चोरी का रहता है,
डकैती का रहता है, डैमेज का रहता है प्रोडक्ट्स को। इंश्योरेंस इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क। आप रिस्क कम नहीं कर सकते, रिस्क जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन उससे क्या होगा, किसी को भी नुकसान नहीं होगा, किसी को भी नुकसान नहीं होगा ऐसे, राइट। तो क्या क्या पढ़ा फ्रेंड्स, मैराइन इंश्योरेंस हमने पढ़ा, एयर इंश्योरेंस पढ़ा, रेल एंड रोड, बहुत इजी है। मैराइन इंश्योरेंस सी में आता है इसलिए इंश्योरेंस की जरूरत है, एयर है कॉस्टली है, बहुत महंगा है, रिस्की है, तो इसलिए उसका प्रीमियम भी ज्यादा है। रेल रोड में भी इंश्योरेंस की जरूरत है क्योंकि थेफ्ट का डर रहता है, डकैती का डर रहता है। फायर इंश्योरेंस, देखो फायर का मतलब पता ही है सबको, आग लग जाना। अब कोई भी रीजन से आग लग सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, अपनी गलती से हो सकता है, केयरलेसनेस में हो सकता है, कुछ भी कारण हो नुकसान हो सकता है। क्या लिखा है, द प्रॉमिस बाय द इंश्योरेंस कंपनी टू पे कंपनसेशन अगेंस्ट द फुल और पार्शियल लॉस और डैमेज टू प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर against a predetermined amount of premium is known as fire insurance। देखो एकदम सिंपल चीज लिखा है उन्होंने, द प्रॉमिस बाय द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी ने क्या प्रॉमिस किया, अगर आग से कुछ नुकसान होता है तो हम आपकी भरपाई करेंगे। अगर कुछ उसमें समझ लो बाढ़ आ जाती है, नुकसान होता है, तो कुछ नहीं मिलेगा। ओके, कौन सा इंश्योरेंस लिया है हमने, फायर लिया है, फायर इंश्योरेंस। द प्रॉमिस बाय द इंश्योरेंस कंपनी, प्रॉमिस किसने किया, इंश्योरेंस कंपनी ने प्रॉमिस किया। द प्रॉमिस बाय द इंश्योरेंस कंपनी टू पे कंपनसेशन, मैं आपको हर्जाना दूंगा, किसके बदौलत, अगेंस्ट द फुल, पूरा, या फिर पार्शियल लॉस हो जाए और डैमेज हो जाए, पार्शियल लॉस हो जाए और डैमेज हो जाए टू द प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर। प्रॉपर्टी मतलब अपना घर या फिर अपना सामान, डैमेज टू प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर अगेंस्ट अ predetermined amount of premium, predetermined amount of premium is known as fire insurance. It is based on the principle of insurable interest। ये क्यों बोला गया है, मैंने क्या बोला था, इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब है हम उसी प्रोडक्ट का इंश्योरेंस ले सकते हैं जो हमारा है, जो नहीं होने से हमको नुकसान है, जो होने से हमको फायदा है। द इंश्योरी गेट्स द कंपनसेशन इक्वलेंट टू द लॉस। देखो प्रॉफिट नहीं कमाना है, अगर लॉस हुआ है तो उतना भरपाई होगा, ड्यू टू, परफेक्ट वर्ड है, ड्यू टू फायर, राइट। तो क्या क्या पढ़ा फ्रेंड्स, एयर इंश्योरेंस पढ़ा हमने, रेल रोड इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस। तो चलो आज क्या क्या देखा हमने, होल लाइफ इंश्योरेंस तो पहले ही पढ़ लिया था मैंने, पर्सन हु इज इंश्योर्ड डाइज, जब वो मर जाता है तब उसको पैसे मिलते हैं, राइट। एंडोमेंट इंश्योरेंस ने पढ़ा कि वो पैसे भरेगा, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसको पैसे मिलेंगे या फिर उसके डेथ पे मिलेगा। जनरल इंश्योरेंस में 3 इंश्योरेंस के बारे में हमने सीखा, गुड ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड अदर फॉर्म्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस। गुड ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस के 3, एक मैराइन हमने पढ़ा, एक एयर पढ़ा, एक रेल रोड पढ़ा। मैराइन हमने क्या पढ़ा, सी रूट से पढ़ा, इकोनॉमिकल है, बहुत रिस्की है लेकिन स्लो है। 18th सेंचुरी में इंटरनेशनल ट्रेड शुरू हुआ सी रूट से, बराबर। एयर इंश्योरेंस 19th सेंचुरी है, मूवमेंट ऑफ गुड्स थ्रू एयर कमेंस शुरू हो गया, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है, महंगा पड़ता है, लाइट वैल्यूबल गुड्स हम उसी में ट्रांसपोर्ट करना सही रहता है, लेकिन प्रीमियम ज्यादा हमें देना पड़ेगा। रेल रोड इंश्योरेंस, लैंड से भी, रेल से भी सामान जाते हैं, उसमें भी रिस्क होता है, थेफ्ट का, डकैती का, डैमेज का, है ना, उसमें। फायर इंश्योरेंस आपने मूवी भी देखा था, याद है, ऋतिक रोशन में ऊपर से कूदता है प्लेन ट्रेन पे, है ना, ऐसे अनइमेजिबल चीज है, और उसमें से वो डायमंड चुरा लेता है, तो वो क्या है, मतलब बता दिया कि रेट कैसे भी हो चोरी होने के डर होता है, तो उसका इंश्योरेंस दिया जाता है। फायर इंश्योरेंस, द प्रॉमिस बाय द इंश्योरेंस कंपनी, प्रॉमिस कौन करती है, इंश्योरेंस कंपनी करती है, टू पे कंपनसेशन against the full or the partial loss or damage to the property due to fire against a predetermined amount of premium is known as fire insurance. It is based on the principle of insurable interest. आगे बढ़ते हैं तो अदर जनरल इंश्योरेंस, अदर मतलब बाकी के, चलो देखते हैं। Most interesting, other general insurance. The business of insurance has grown with the time and new types of insurance has come into existence.
बहुत बढ़ चुका है इंश्योरेंस, और बहुत सारे टाइप्स के अब इंश्योरेंस आते हैं। इंश्योरेंस ऑफ द वॉइस फॉर अ सिंगर। अब सिंगर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर बिजनेसमैन है तो उसके लिए उसका गुड्स है, उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन एक सिंगर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उसका वॉइस है, उसकी आवाज है। अगर वो कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो नुकसान होगा उसको, तो उसके लिए वो इंश्योरेंस लेता है। इंश्योरेंस फॉर ऑफ द वॉइस फॉर अ सिंगर। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस टू गिव कंपनसेशन बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ व्हीकल्स टू अदर। अब ये क्या है पता है आपको? एक मिनट है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस टू गिव, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सुना है? जैसे कि मेरे पास एक गाड़ी है, तो मैंने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया है। इसका मतलब मेरा अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसे नहीं देगी, थर्ड पार्टी को देगी जिसके साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ है। ऐसा भी होता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस टू गिव कंपनसेशन बिकॉज द यूज ऑफ व्हीकल टू द अदर्स। इंश्योरेंस फॉर लेबर कंपनसेशन इन केस ऑफ एक्सीडेंट। अगर मैंने लेबर कंपनसेशन का मतलब कि लेबर ने कुछ अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए हम इंश्योरेंस बनाए रख सकते हैं। कंपनसेशन, इंश्योरेंस फॉर लेबर्स, पता ही है लेबर्स का इंश्योरेंस लेना। एम्प्लॉय इंश्योरेंस, स्टूडेंट इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट जनरल एंड सोशल डैमेजेस। मेडिक्लेम है ना, अभी तो कोरोना कवच करके आ गया है मेडिक्लेम के अंदर भी नया नया। मेडिक्लेम टू कंपनसेट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, बराबर। मरकर कुछ आपको बुखार हो जाता है, बीमार पड़ जाते हो तो उसके लिए। अगेंस्ट द लॉस ड्यू टू क्लोजर ऑफ बिजनेस, हाँ बिजनेस अगर बंद हो जाए तो इंश्योरेंस उसका भी होता है। अगेंस्ट द लॉस ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड अगर हो जाता है तो उसका भी है। मतलब हर चीज का इंश्योरेंस हो रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या क्या पढ़ा फ्रेंड्स? एक तो हमने पढ़ा होल लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा हमने क्या पढ़ा? एंडोमेंट इंश्योरेंस। फिर हमने क्या पढ़ा? जनरल इंश्योरेंस में पहले हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हमने पढ़ा। तो ट्रांसपोर्टेशन में पहली चीज हमने पढ़ा रेल एंड रोड इंश्योरेंस। फिर कौन सा है? फायर इंश्योरेंस। फिर अदर इंश्योरेंस। सही है। अब आगे बढ़ते हैं। प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या है? सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं, अब प्राइवेट है। अब देखो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इंश्योरेंस बहुत बड़ा नाम है मार्केट में। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस बहुत बड़ा नाम है मार्केट में। सिर्फ एलआईसी नहीं, बाकी लोग भी आज मार्केट में हैं। प्राइवेटाइजेशन, इंश्योरेंस वाज इनिशिएटेड बाय प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया। वो क्लियर लिखा है, इंश्योरेंस कब इंडिया में किसने किया? प्राइवेट सेक्टर लोगों ने बढ़ावा दिया। एज इंडिया वाज ए ब्रिटिश कॉलोनी, many foreign insurance companies started insurance business in India as they have blamed for practicing illegitimate मतलब जालसाजी on business practice. On 19th century 1956 through an ordinance, life insurance business was nationalized कर दिया, and Life Insurance Corporation of India was set up, LIC को set up किया गया। Thus the monopoly of Life Insurance Corporation was established। मोनोपोली दे दी है। मोनोपोली का मतलब पता है आपको क्या होता है? मोनोपोली मतलब सिंगल पर्सन, एक ही बंदा है जो ये सब कुछ काम कर सकता है, जो पॉलिसी बेच सकता है, उसे कहते हैं मोनोपोली। जनरल इंश्योरेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन इंडिया, उन्होंने स्टार्ट किया था, 200 साल राज किए हम पे। Periodicals control were imposed on the general insurance as well as it's continued after independence. On 1st January 1973, the general insurance was established on the basis of general insurance. To analyze and appreciate, appraise the insurance sector, a committee was appointed. It recommended the joint business by foreign insurance company, Indian counterparts, IRDA. ये अभी भी काम करती है IRDA। इसका नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, राइट। इस तरह से ये काम होता है। नेक्स्ट पीरियड में फ्रेंड्स हम यहाँ से पढ़ेंगे, अब ये इतना नहीं करना है, ये तो ठीक है। नेक्स्ट पीरियड में हम पोस्टल सर्विस से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा बोलो? एक तो हमने पढ़ा, बोलो, पहले हमने पढ़ा होल लाइफ इंश्योरेंस। फिर हमने पढ़ा एंडोमेंट इंश्योरेंस, मतलब पॉलिसी भरनी पड़ेगी और जब डेथ होगा तो उसके लीगल हेयर को, डेथ नहीं होता है तो जो भी पैसा है उसको मिल जाएगा। फिर हमने पढ़ा जनरल इंश्योरेंस के बारे में, 3 तरह के इंश्योरेंस थे।
एक मेन ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर मैराइन आ जाता है, शिप के ऊपर इंश्योरेंस होता है, रिस्की होता है, स्लो होता है। 18th सेंचुरी में शुरू हो गया था। किसने दिया था ये पहले? लॉयड्स ऑफ लंदन। कितने साल से चल रहा है ये? 325 ईयर से काम कर रहे लोग, सही है। और उसके बाद कौन सा इंश्योरेंस है? एयर इंश्योरेंस। 19th सेंचुरी जैसे ही स्टार्ट हुआ, एयर इंश्योरेंस ने काम चालू कर दिया, एयर ट्रांसपोर्ट चालू हो गया। तो प्रीशियस थिंग्स, लाइट वेट मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने का सबसे बढ़िया जरिया, क्योंकि बहुत ही जल्दी पहुंच जाता है, हम जानते हैं, लेकिन प्रीमियम वास मोर। फिर हमने देखा रेल रोड इंश्योरेंस, उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं। वो कैसे? क्योंकि उसके अंदर भी क्या था? उसके अंदर भी थेफ्ट के डर है, रॉयट्स के डर है, कुछ भी चोरी होने का डर है। तो उसमें भी हमें उसमें भी हमें इंश्योरेंस निकालना पड़ा। फिर हमने पढ़ा कि जनरल इंश्योरेंस बहुत बढ़ चुका है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस है। फायर इंश्योरेंस हमने पढ़ा। फायर इंश्योरेंस में क्या पढ़ा? तो इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करती है कि भाई कुछ भी प्रॉपर्टी हो, कोई भी चीज को अगर फायर से नुकसान हुआ हो तो हम आपकी भरपाई करेंगे। फायर इंश्योरेंस में वो पढ़ा। फिर हमने पढ़ा जनरल इंश्योरेंस बहुत बढ़ चुका है। म्यूजिक वाले अपने वोकल का लेते हैं, है ना, सब चीज का इंश्योरेंस हम ले सकते हैं, राइट। फिर किसको दिया गया मोनोपोली? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कब एस्टैब्लिश हुआ? 1956 में। कौन देखता है, कौन संभालता है? IRDA। क्या है फुल फॉर्म IRDA का? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, चलो एक बार देख लो अच्छी तरीके से। आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पीरियड में क्या देखेंगे हम? पोस्टल सर्विस। बहुत मजा आएगा, ठीक है। सेविंग के बारे में है, किस तरह से काम करते हैं, उसके बारे में सब कुछ है। तो बेटर एक बार आप इसे रीड करके रेडी रहना, ठीक है। ओके देन, थैंक यू। होप यू रिवाइज किया आपने ये सब। थैंक यू।